تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، برتری، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہمارا مربی پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر انگنت بے شمار احسانات کیے ہیں۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص امام کائنات خاتم النبیین والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اس کائنات کی سرزمین پر آخری نبی و رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے کچھ عبرت ناک نمونے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ اعلان کیا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا تو ابراہیم تمام تر آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور یہ بتایا گیا کہ ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ ان تمام تر آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش وہ یہ تھی کہ اس کائنات پر جب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں، شرک کا دورہ ہے، ذرا تو گمراہی کا دورہ ہے۔ خود باپ کا یہ حال ہے کہ وہ بتوں کو بناتا، پوجتا اور ان کو فروخت کرتا ہے۔ ایسے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش تھی کہ خود باپ کے سامنے اور قوم کے لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے، اور اس وحدانیت کے اعلان میں، اس اللہ رب العالمین کی توحید کے پرچار میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور جن دقتوں کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ اللہ رب العالمین نے بخوبی بیان کیا ہے کہ قوم کے لوگوں نے، خود باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا تھا۔ وہ تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے برداشت کرتے رہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اور بہت ساری آزمائشیں ہیں، ہمیں اس طرف نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں ان آزمائشوں کا مقابلہ اور کیا ہے معائنہ کرتے ہوئے خود اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ آیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر لاکھوں کروڑوں جانوروں کو قربان کرتے ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کچھ اور بھی سبق دیتی ہے؟ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اور بھی سبق دیتی ہے۔ آج یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے۔ وہ شادی شدہ جوڑے جن کو سال یا 2 سال 3 سال کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے اولاد میسر نہ آئے، اولاد کی دولت نہ ملے، اولاد کی نعمت نہ ملے، وہ دنیا کے اندر ہر ایک ہتھ کنڈا اپناتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، حکیموں کا دورہ کرتے ہیں، باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، غرض یہ کہ ہر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ شریعت سے دور چلا جاتا ہے، اس راستے کو بھی اختیار کرتے بنا نہیں رہتے۔ جبکہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اولاد سے محروم کر رکھا ہے، عمر چاہے کوئی بھی ہو، بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بانجھ ہوں، میں اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، ایسی کنڈیشن اور ایسی پوزیشن میں بھی ایک اولاد کے متمنی شخص کو، ایک اولاد کی خواہش رکھنے والے شخص کو دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ عمر کا حال کیا ہے؟ عمر یہ ہے کہ آپ کی عمر کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا 80 یا 86 سال کی عمر،
اور बीवी का ये हाल है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते मेहमान बनकर के आते हैं तो उनके दिलों के अंदर डर पैदा होता है कि जब वो मेजबानी उनके सामने पेश करते हैं, खाना पेश करते हैं, फरिश्ते खाना नहीं खाते। उसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डर लगने लगता है। आखिर इनका इरादा क्या है, ये मेहमान है हमारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर जब डर खटकता है, फ़अौजस मिनहुम ख़ीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन हलीम। तो कहते हैं फरिश्ते इब्राहीम, डरो नहीं, खौफ नहीं खाओ, हम तुम्हें एक बुर्दबार बच्चे की बशारत देने के लिए आए हैं, एक हलीम बच्चे की हम तुम्हें बशारत दे रहे हैं। और ये सोचिए, जब ये बात एक बीवी सुनती है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सुनती है, फ़अक़बलत इम्रातुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम। वो बीवी ये बयान कर रही है, आगे बढ़कर के अपने चेहरे पर मारती है। लोगों ने ट्रांसलेट ये भी किया कि वो चीखो पुकार करके ये कहती है, भला मैं बच्चा पैदा करने की ताकत कैसे रखती हूं, मैं बांझ हूं, मैं बूढ़ी हूं, मेरी उम्र ढल चुकी है, मैं बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं रखती। लेकिन फरिश्ते कहते हैं, क़ालू कज़ालिकी क़ाल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तेरे रब ने हमें हुक्म दिया है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत वाला है और जानने वाला है। लिहाजा मालूम ये होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसके यहां क्या देगा और किसको कितना देगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के ताल्लुक से खैर खा है। ये पहलू हमें और आपको नजर आता है। उम्र चाहे कोई भी हो, औलाद मांगना है अल्लाह से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद मांगते हुए हमें क्या है, महरूम नहीं होना है, मायूस नहीं होना है कि अब हमारी उम्र ढल चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बीवी बूढ़ी हो चुकी है, लिहाजा औलाद नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ इलाहुल आलमीन नेक औलाद अता फरमा दे, नेक औलाद अता फरमा दे। लिहाजा मालूम ये होता है, जब हम और आप औलाद की दौलत से महरूम हो, दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करनी चाहिए औलाद के लिए। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद मांगे तो नेक साले औलाद का अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करे। जब हमारी औलाद नेक होगी तो उसका फायदा क्या होगा, यह भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें सबक मिलता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी, यानी हज़रत इस्माइल से नवाज दिया है। मालूम यह होता है, उमर 86 साल की है, बूढ़ी, और क्या है, बीवी बांझ है, अपने आप को गर्दानती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्किरा किया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बेहतर और बरहक है, इसलिए वो जिसे चाहता है औलाद देता है, यानी औलाद में जिसे चाहता है सिर्फ लड़के लड़के देता है, और जिसे चाहता है सिर्फ लड़कियां लड़कियां देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और जिसे चाहता है तो दोनों देता है, यानी मर्द लड़के और लड़कियां दोनों देता है। और यजअलुहुम मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन बांझ बना देता है। लिहाजा इब्राहीम की जिंदगी से हमें यह भी सबक मिलता है, औलाद का सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना है, और नेक औलाद का सवाल करना है, इसलिए कि औलाद का देने वाला कोई बाबा नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। लिहाजा हमें सवाल औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दी, और कितनी उम्र के बाद दी है यह भी हमें मालूम है। लिहाजा औलाद ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में किसको महबूब होगी, हर बाप को, कि वो एक औलाद उसके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आजमाइश रखी है, अपने बच्चे और अपनी बीवी को बेआबो गया वादी के अंदर छोड़कर जाना है अल्लाह की रजा के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ा एक ऐसी चटियल मैदान में जहां ना चरिंद ना परिंद ना हरियाली है, सिर्फ सूखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की वजह से छोड़ रहे। और जब हम शादी ब्याह करने के लिए जाएं तो हमें यह पैगाम मिलता है कि हम अपनी बीवियों का नेक इंतखाब करें, यानी
नेक जोड़ा तलाश करने की कोशिश करें। नेक जोड़ा होगा, उसका फायदा क्या होगा? अगर आप अल्लाह के हुक्म की तामील करने जा रहे हैं, अगर आप अल्लाह के हुक्म की इताअत करने जा रहे हैं, तो आपकी बीवी आपके लिए खैर का साबित होगी और आपको अल्लाह की इताअत करने में मदद करेगी। उसकी मिसाल मिलती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। अल्लाह का हुक्म, हज़रत इब्राहीम ने अपने बच्चे को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, बीवी को छोड़कर जा रहे। बीवी पूछती है बार बार, इब्राहीम हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो? यहां लोग नहीं है, यहां चरिंद परिंद नहीं है, यहां खाने पीने का सामान नहीं है, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं देते हैं। बीवी खुद सवाल करती है, अल्लाह अमरा का बिहाजा, इब्राहीम क्या अल्लाह ने आपको इसी तरीके से हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलट करके जवाब दिया, हां। उस नेक औरत का जवाब सुनिएगा। जब अल्लाह की जात पर ईमान हो, जब दिलों के अंदर ईमान हो, और जब एक इंसान नेक हो, तो उसका जवाब क्या होता है? अगर अल्लाह का यह हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के हवाले आप हमें करके जा रहे हैं, इज़ल्ला युज़य्युना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बर्बाद नहीं करेगा, हमें ज़ाय नहीं करेगा। आजकल हालात क्या है? अगर बच्चों की पैदाइश होती है, एक लंबे अरसे के बाद, 2-4 साल के बाद, बच्चे की पैदाइश पर बड़ा जश्न मनाया जाता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, नचड़ियों के नाच गाने होते हैं, केक काटे जाते हैं, पार्टियां साटियां होती हैं, सारे कुछ मुसलमान कर रहे हैं। इब्राहीम ने क्या किया? बच्चा पैदा हुआ है, अभी दूध पीता बच्चा है, अल्लाह के हुक्म पर एक चटियल मैदान के हवाले करके चले जाते हैं अल्लाह के हुक्म की वजह से। और हम क्या है? जश्न मनाते हैं। हम बच्चों के पैदा होने पर क्या करते हैं? पार्टियां साटियां करते हैं। कहां से हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो सबक मिलता है, कहां है हमारी जिंदगियों के अंदर वो सबक? छोड़ा अल्लाह के हुक्म पर। बीवी ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। नेक बीवी होगी तब आपको अल्लाह की इताअत करने पर क्या है? अल्लाह की इताअत करने में आपकी मदद करेगी। आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बीवी को शॉपिंग करने के लिए जाना है, आप कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ गया, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। बीवी कहेगी आप नमाज पढ़ के आइए, फिर बाद में चलेंगे। अगर बीवी नेक नहीं होगी, बीवी के अंदर ईमान नहीं होगा, अल्लाह की जात पर उसका ईमान नहीं होगा, वो नेक नहीं होगी, कहेगी क्या हाजी जी बनने के लिए चले हो, चलो पहले मुझे शॉपिंग करा करके लाओ, मुझे क्या है सामान दिला करके लाओ। इसलिए इंतखाब कीजिए नेक बीवियों का, नेक रिश्ते तलाश कीजिएगा। नेक रिश्ते होंगे, दीन, नस्लों के अंदर दीन आएगा, ईमान आएगा। अगर ईमान क्या है, बीवियां नेक नहीं होंगी, रिश्ते नेक तलाश नहीं किए जाएंगे, फिर दीन के लिए ईमान की नस्लें क्या है, तरसती रह जाएंगी। और आजकल ऐसा हो रहा है। ये ठीक आजमाइशें दो, औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद का सवाल कीजिए। औलाद मिलती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कीजिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करता हूं, शुक्र उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि जिस अल्लाह ने मुझ बूढ़े शख्स को बुढ़ापे के आलम में इस्माईल और क्या है, इसहाक अता की है, इसलिए कि बेशक मैं जानता हूं इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, दुआओं का सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा रब है। ये भी मालूम होता है आज हम अल्लाह का दर छोड़ करके, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने को छोड़ करके, न जाने कहां जाकर के हाथ फैला रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को छोड़ करके। जबकि हमें इब्राहीम की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि रब की रहमत से, रब की क्या है, रहमत से किसी भी हाल में मायूस नहीं होना है। इसलिए कि दुआओं का सुनने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तारीफ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से होनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म पर बीवी बच्चों को भी चटिल मैदान में छोड़ना पड़े तो छोड़ना है। आज का मुसलमान अजान की आवाज सुनता है, उसके कानों में आवाज टकराती है, वो अपने बाल बच्चों को छोड़कर मस्जिद के अंदर हाजिरी नहीं देता है। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने वाले लोग हैं। इसी तरीके से छोड़ते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चों को। एक पहलू नजर आता है, अपने बाल बच्चों से ओझल हो गए, यानी नजर नहीं आए, एक टीले पर खड़े हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह, मैंने अपने बाल बच्चों को, मैंने अपने बीवी बच्चे को चटियल मैदान में तेरे हुक्म के हवाले किया है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मैंने इनको जो चटियल मैदान में छोड़ दिया है, मेरा मकसद तेरी रजा हासिल करना है और मैं ये चाहता हूं ताकि ये नमाज कायम करने वाले बन जाएं, इसलिए मैंने तेरे हुर्मत वाले घर के पास इन्हें छोड़ा है।
मालूम ये होता है इस आयत की रोशनी में, मुसलमान कहीं भी आबाद होने के लिए जाएं तो इलाका वो तलाश करें जहां मस्जिदें हों, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर हों, ताकि अल्लाह के घरों से जब अल्लाह की आवाज आएगी उनको मालूम होगा हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां आयद होती हैं। आज मुसलमान ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर के मकानात ले रहे जहां शांति वाला इलाका हो, जहां क्या है ज्यादा मुसलमानों की बस्ती ना हो, जहां बार बार हमारे कानों से हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह ना टकराती हो, ऐसे इलाकों में मुसलमान मौजूद है। सुबह से शाम हो जाती है, एक बार भी उनके कानों में हय्या अल फलाह या अल्लाहु अकबर की सदा नहीं जाती है। उन्हें मालूम ही नहीं है ज़ोहर की अजान क्या है, असर की अजान क्या है, मगरिब की अजान क्या है। हज़रत इब्राहिम अपने बाल बच्चों को छोड़ रहे चटिल मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के पास, इसलिए कि लियुकीमस्सलाह, वो नमाज कायम करने वाले बने। आज मुसलमान उन इलाकों को छोड़कर जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, उन इलाकों को छोड़कर जहां मसाजिदें हैं, गैरों की बस्तियों में जा रहा है ताकि वो नमाज से दूर हो जाए, अपने बच्चों को नमाज से दूर ले जाए। और ऐसा ही है जिनके मकानात दूर है, उनका हाल क्या है? क्यों जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? मस्जिद बहुत दूर है, बड़ी दिक्कत होती है, कुत्ते हैं और ये सारी चीजें, बड़ी परेशानियां आती हैं। लिहाजा जुमा पढ़ लेंगे और साल में ईद की नमाज पढ़ लेंगे, हमसे बड़ा मुसलमान फिर कोई नहीं है। ये हमारे हालात हैं, सोचने की बात है। इब्राहिम ने कहा कि मैं तेरे रब के ऐ मेरे रब, तेरे घर के पास मैं अपने बाल बच्चों को बसा रहा हूं, छोड़ करके जा रहा हूं, ताकि ये क्या है नमाज कायम करने वाले बन जाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे इब्राहिम, ऐ मेरे रब, मेरे इन बच्चों को क्या है तू फलों की रोजियां अता करना। लिहाजा हमें भी चाहिए अपने बाल बच्चों के हक में माल की तरक्की के लिए, रिस्क की फरावानी के लिए दुआ करते रहें। और दुआ बरकत वाली होनी चाहिए, हवस वाली नहीं कि बहुत ज्यादा मालो मता मिले, बहुत ज्यादा अच्छी बिल्डिंग और क्या है मकानात हो, इसकी लाइफ स्टाइल अच्छा हो, ये नहीं। बरकत वाला रिस्क के लिए आप और हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें। इसी तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े और दुआ कर रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मुझे और मेरे बाल बच्चों को, यानी मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना देना। अल्लाह तू हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, लिहाजा हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ये जिंदगी से पहलू नहीं मिलता है, लिहाजा हमें इबरत हासिल करना चाहिए, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना चाहिए और अपने नमाज पर पाबंदी की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करनी चाहिए। जहां हम अपने हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन से नमाज की पाबंदी की दुआ करें, उसी तरीके से अपने बच्चों के हक में भी नमाज की पाबंदी की दुआ करें। ये हमें संदेश मिलता है कुरानी आयत की रोशनी में। ठीक है, ये बात मालूम होती है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सामने वो भी मरहला आता है कि हर एक बाप को जब एक औलाद उसके बुढ़ापे का सहारा होती है वो बड़ी अजीज होती है। आजकल इमोशनल दौर है, लोग बड़ी जल्दी छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर बाहर किसी जानवरों को गलत कंडीशन में देख लेंगे, किसी तकलीफ में मुब्तला देख लेंगे तो रो देंगे, लेकिन इंसान तड़पता है कहीं, तो मुसलमानों का हाल क्या है जाने दीजिए। ऐसी गैर कौमों का हाल है, कितने इंसान मारे जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंसान मर रहे तो खुशियां मना रहे, जानवरों पर छुरी चलाई जा रही है, अल्लाह के हुक्म से इन्हें तकलीफ होती है। कितने इंसान दुनिया के अंदर मर रहे, कोई तकलीफ नहीं। अगर मुसलमान मर रहा है, गैरों को बड़ी खुशी होती है, मुसलमान मर गया। लेकिन यही अगर देखिए जानवर मर जाए, कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए या कोई और जानवर मर जाए, इनको बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन इंसान मरे तो ये जश्न मनाया करते हैं। ये हालात क्या हैं, क्या संदेश देते हैं? और एक मुसलमान का हाल क्या है? अगर 3-4 साल किसी जानवर को पाल ले, उससे बड़ी लगन हो जाती है, बड़ा प्यार हो जाता है, वो अगर उस जानवर को जो 3-4 साल से पाल रहा है कुर्बानी के लिए लेकर जाएगा, पूरी फैमिली रोती है, बड़ा प्यार करती है, कहां लेकर के जा रहे हैं, इसे अभी ना कीजिएगा, इसे बाद में कर लीजिएगा। बड़ी प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं हम और आप वो उस जानवर से जिसे 3-4 साल हमने पाला होता है, और वो जानवर है, उसे तो अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान किया जा रहा है। उस बाप पर क्या बीती होगी जिस बाप से अल्लाह ने मुतालबा किया होगा कि एक बुढ़ापे का सहारा इस्माइल है आपका, उसे अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कीजिएगा। हम कुर्बानी का मफहूम क्या समझते हैं? सिर्फ चंद पैसों का जानवर खरीद करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना और उसका सारा का सारा गोश्त खा करके बैठ जाना, ये कुर्बानी है? कुर्बानी ये नहीं है।
कुर्बानी का मफहूम यह है, कुर्बानी का संदेश और पैगाम यह है, जहां अल्लाह का हुक्म हो, हर महबूब चीज को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करना है, यह कुर्बानी है। और इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखलाया है। आजमाइश है, औलाद नहीं है, कोई फिक्र नहीं, अल्लाह का दर छोड़कर दूसरे दरों पर नहीं जाएंगे, औलाद की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे, और सबसे पहले औलाद को नमाज का पाबंदी बनाने की दुआ करेंगे, जो आज हमारे यहां नहीं पाया जा रहा है। उसके बाद अल्लाह का हुक्म है, ऐ इस इब्राहीम, आपको जो सबसे ज्यादा महबूब चीज है उसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कीजिए। अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम बरगुज़ीदा पैगंबर ने क्या नमूना कायम किया है, क्या नमूना पेश किया है। इस्माइल को लेकर के चले अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए, अल्लाह का हुक्म है, गर्दन पर छुरी रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देता है, वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम बस कर दीजिए, आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, लिहाजा ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। इब्राहीम बस कीजिए, हम आपको एक हदिया दे रहे हैं और इस हदिये को कुर्बान कर दीजिए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल को बचाया, जन्नत से एक दुम्बा भेजा और उसको कुर्बान करा दिया है। मालूम यह होता है इन तमाम तर कुरानी आयात की रोशनी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है, एक अल्लाह के हुक्म पर हर एक महबूब चीज को हम और आप कुर्बान करने का जज्बा पैदा करें। अगर जज्बा हमारे दिलों के अंदर ऐसा नहीं है, हमें अपना वक्त बड़ा चीज है, वक्त की अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी दुकान पर बैठे हैं और हमारे कानों में अजान की आवाज टकरा रही है, उस वक्त की अहमियत का पता चलता है। 3-4 कस्टमर बाहर खड़े हैं दुकान के और वो सौदा खरीदने वाले सौदा खरीदेंगे, सौदा बिकेगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज कान से टकराई है, उस वक्त कस्टमर को नहीं देखा जाएगा, ग्राहकों को नहीं देखा जाएगा, उस वक्त अल्लाह के हुक्म की तामील की जाएगी। यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अपने आप को हर चीज कुर्बान करने का मकसद और मतलब, यही कुर्बानी का पैगाम है जो आज हम नहीं समझ सके हैं। हमें अपनी औलाद बड़ी अजीज है, लेकिन औलाद नींद में सो रही है, उसकी नींद बड़ी प्यारी है, इसलिए कि औलाद जब चैन से सो जाएगी, औलाद की नींद पूरी हो जाएगी, औलाद को उठा करके हम क्या है स्कूल कॉलेज भेजेंगे या काम काज के लिए भेजेंगे। अगर औलाद को 3 बजे या 4 बजे फजर में नमाज के लिए उठा देंगे, उसकी नींद में खलल वाक़ई हो जाएगा, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर वो पढ़ने कैसे जाएगा, फिर बिजनेस करने कैसे जाएगा। ये चीज हमारे लिए जायज नहीं है, इसलिए कि शरीयत का पैगाम ये है, अगर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है, जानवरों को कुर्बान करना है, उससे पहले अपनी अनाओं को कुर्बान कीजिए, अपने आराम को, अपने चैन सुकून को, अपनी हर चीज को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कीजिए। ये कुर्बानी का मकसद है, ये कुर्बानी का पैगाम है, ये कुर्बानी का संदेश है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, खुद बाप भी सो रहा है, औलाद भी सो रही है, बीबियां भी सो रही हैं, इसलिए कि दीन नहीं है, ईमान नहीं उस तरीके का। जब ईमान होगा तो बीबी उठेगी, शौहर को उठाएगी, बच्चों को उठाएगी, जाइए अल्लाह का हुक्म आ चुका है, अल्लाह के हुक्म की तामील करके आइए, यानी नमाज पढ़ करके आइए। आज ये चीज हमारे यहां मौजूद नहीं है, लिहाजा इस चीजों की तरफ तवज्जो देना है कि कुर्बानी का मकसद, कुर्बानी का पैगाम यह है कि हम हर एक चीज, हमारी अना, हमारा रुपया पैसा, हमारी जान, हमारा माल, हमारे आबा व अजदाद, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, ये सारी चीजें एक तरफ और अल्लाह का हुक्म एक तरफ। जहां अल्लाह का हुक्म आएगा, दुनिया की तमाम तर चीजों को छोड़कर अल्लाह के हुक्म की तामील करेंगे, तब जाकर के हम कुर्बानी के सही मकसद को पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है, इसलिए कि उन्होंने अपने घर को छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, उन्होंने सारी चीजों को कुर्बान किया। उसके बाद ये जज्बा, ये हिम्मत उनके अंदर आई कि उन्होंने अपने बेटे पर भी अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी और चिराचे क्यों नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। ये संदेश हमें और आपको मिलता है, हर एक चीज अल्लाह के लिए कुर्बान होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। रब के लिए कुर्बानी करना है तो हर एक चीज को कुर्बान करना है, सिर्फ जानवरों को कुर्बान नहीं करना है।
इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये तालीम दी थी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी पाक, आप ये ऐलान कीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहु, उस अल्लाह का कोई शरीक और साजी नहीं है, इसलिए कि मुझे इसी चीज का हुक्म दिया गया और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानने वालों में सबसे पहले बात मानने वाला हूं। ये तालीम हमें और आपको मिलती है। लिहाजा इन्हीं तालीमात की रोशनी में आपको ये संदेश दिया जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़िए और उस ज़िंदगी से इबरत हासिल करने की कोशिश कीजिए। जो सबक हमें और आपको मिलता है उस सबक को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज कीजिए। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी हमारे लिए आइडियल और नमूना है, और वो तमाम तर चीज़ें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती हैं बड़े अनमोल असबाक हैं। लिहाजा अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज कर लेंगे तो बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे ला हम तमाम लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि बारे ला हम तमाम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ने और पढ़ने के बाद जो सबक हमें मिलता है उस सबक को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ करते हैं जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जान माल और ईमान की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ करते हैं जब तक हमें दुनिया के अंदर रखना तौहीद पर, खात्मा बिल खैर फरमाना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।